Hello student, how are you? I hope everyone are fine. I am Gautam sir. आज मैं आप लोगों को केमिस्ट्री का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में आपको बताएंगे। जो आपको एग्जाम आ गया है तो आप उसके लिए बहुत ही आपको अच्छा रहेगा। तो लास्ट टाइम आप रिवीजन कर सकते हैं। फटाफट रिवीजन हो जाता है। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो मेरे पास पढ़े, बाकी जो लोग आप देख रहे हैं उसको जरूर ध्यान से देखिए। आप मैं अभी शुरू कर रहा हूँ आप लोगों को कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बट उसमें मोस्टली टॉपिक्स जो है केमिकल प्रॉपर्टीज वाले वो आपको नहीं आ रहे हैं। तो लिमिटेशन टॉपिक्स आ रहे हैं, उनमें से क्वेश्चंस भी कोई डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो पहले ध्यान से देखिए। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन क्या होते हैं ना, एक नॉन मेटल होते हैं। कार्बन को सी से ड्यूरिंग किया जाता है। कार्बन की एटॉमिक नंबर होते हैं 6 और उसका इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन K and L cell, so 2,4. So outermost orbit has 4 electrons. Outermost orbit 4 electrons. So carbon do not take more extra electron or in inert gas configuration, and कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इसकी एटॉमिक साइज वेरी छोटा होता है एंड it will require much more energy which is not possible. So carbon generally sharing of electron. Okay, so carbon atom is very small due to which its outermost electrons are strongly held by the nucleus. So it is not possible to remove 4 electron from a carbon atom, 4 electron from a carbon atom to give in the inert gas electron arrangement.
Okay, so this why carbon do not lose their electron. Okay, because there is small size, it will require much more energy. Now, it is not possible to add as many as 4 electrons to a carbon atom due to energy consideration. Due to energy consideration and acquire the inert gas configuration. Inert gas configuration. So it is not gain electron because number of electron much more and photon is fixed. You cannot fail the extra electron to hold the atom. It is not possible. So since noted this portion, तो आपको क्वेश्चन पूछा जाए व्हाई कार्बन एटम नॉट गेन और लूज इलेक्ट्रॉन, तो आप ये लिखोगे व्हाई कार्बन एटम इज आल्सो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहले ये दोनों स्टेटमेंट लिखने के बाद उसके बाद ये लिखोगे सिंस कार्बन एटम्स कैन अचीव the inert gas electron arrangement only by the sharing of electrons. Therefore, carbon always form covalent bond. Okay, carbon always covalent bond. So carbon is tetravalent because in electronics configuration, outermost orbit, number of electron present 4. So carbon, one carbon atom required 4 electrons to achieve the 8 electron inert gas structure. So therefore the valence carbon is 4. So that's why carbon is a tetravalent. Okay. Now self combination means कार्बन के एक प्रॉपर्टीज होते हैं एबिलिटी टू कंबाइन विथ इटसेल्फ and to form a long chain, that is self combination. Okay, self combination means
The property of cell combination of atom to form long chain is useful as because of it gives rise to extremely large number of carbon compounds. The property of cell combination of carbon atoms to form long chain is useful to us because it gives rise to an extremely large number of carbon compounds, that is organic compound, self-linking. Okay, generally आपको पता है कार्बन फ्री स्टेट कार्बन occurs naturally mainly two form. It has allotrope form, that is diamond, graphite, and combined state is carbon dioxide, carbon and organic compound, that is coal, fossil fuel, that is coal, petroleum, natural gas, and organic compound जैसे fat, protein, etc. ये सब जो होते हैं इन सब में कार्बन की फॉर्मेशन मिलते हैं. एक तो फ्री स्टेट में मिलते हैं, इसमें डायमंड ग्राफाइट की फॉर्मेशन में आ जाते हैं, और होते हैं आपको कॉम्बाइंड स्टेट, जो कॉम्बाइंड स्टेट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो गया, कार्बोनेट जैसे लाइमस्टोन, मार्बल, चॉक, ये सब होते हैं. फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पोटासियम, है ना, नेचुरल गैस, ये सब फॉर्मेशन होते हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड में फैट, प्रोटीन एक्सेट्रा. ओके, ये सब में ही होते हैं. वुड, कॉटन, ये सब में होते हैं कार्बन की प्रेजेंट होते हैं, जिससे कंबाइंड फॉर्म. एलोटॉप्स ऑफ कार्बन में डायमंड और ग्राफाइट एंड और होते हैं बक्स, मिक्सचर, फ्लोरेंस. ओके, इनमें से मैं आपको ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, आप लोग ने लर्न कर लिया होगा. जस्ट हम डिस्क्राइब कर देते हैं. डायमंड इज ए कलरलेस होते हैं और ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस हैविंग एक्सट्रीमली ब्रिलियंट. कार्बन डायमंड जो होते हैं टाइटली पैक होते हैं और इसके अंदर कोई पेस नहीं होते हैं. ना पेस होने का रीजन में इसमें हार्डेस्ट सब्सटेंस हो गया, बट ये क्या होते हैं ना, गुड कंडक्टर नहीं होते हैं. ठीक है, तो डायमंड को बर्न करने के बाद डायमंड में कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होते हैं, बिकॉज ये कार्बन ही है, ऑक्सीजन के साथ बर्न होके कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन होते हैं, और ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होते हैं. ग्राफाइट जो होते हैं स्लिपरी होते हैं और इसमें लूजली पैक होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. ओके, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. और इसको भी जैसे ग्राफाइट बर्न होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ही फॉर्मेशन होगा, बिकॉज ये कार्बन की एक फॉर्मेट हो गया, डिफरेंट फॉर्म ऑफ कार्बन बोला जाते हैं. ठीक है, और जब इसकी स्ट्रक्चर को देखा जाएगा, जो डिफरेंट डायमंड की स्ट्रक्चर, ये 4 सराउंडिंग कार्बन एटम आर एट 4 वेराइटीज ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन. चारों का साथ होते हैं और उसमें ये बोलते हैं इसलिए टाइटली पैक होता है, वेरी हार्डेस्ट सब्सटेंस बोला जाता है. और जो ग्राफाइट होते हैं, आप लोग ग्राफाइट्स के अंदर जनरली उसमें लूजली पैक होते हैं, वेरी सॉफ्ट होते हैं, बिकॉज उसके अंदर क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन के साथ ग्राफाइट जो है स्ट्रक्चर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द डायमंड या ग्राफाइट क्रिस्टल कॉन्सिस्ट
layer of carbon atom, sheet of carbon. Each carbon atom graphite layer join 3 other carbon atom by strong covalent bond. और इसलिए लूजली पैक होते हैं। लूजली पैक होने का रीजन में ये क्या होते हैं ना, इजीली गुड कंडक्टर हो जाते हैं। अब देखो इसमें जो हमने डिफरेंट कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बताया, और डिफरेंट बॉन्ड की, है ना, कोवैलेंट बॉन्ड जो हमने बताया, जो कोवैलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे आपको बोले हैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन की स्ट्रक्चर बनाओ, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन जनरली आपको पता है, हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसके एक ही इलेक्ट्रॉन है। वो हाइड्रोजन क्या करेगा, इनके साथ शेयर करेगा, उसका देखो ऑक्टेव नेचर हो गया। और ये हाइड्रोजन भी इसके साथ शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन के साथ, ऑक्टेव नेचर होके इसका एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होके फॉर्मेशन हो जाते हैं H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। इस तरफ ऑक्सीजन का साथ देखा जाएगा। ये ऑक्सीजन में क्या होता है ना, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो एटॉमिक नंबर 8 होने का रीजन में 2,6, तो इसका मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 नहीं है। उनको ऑक्टेव नेचर होने के लिए 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगा। तो जब 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगा तो दैट इज मीन क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर लेगा। देखो इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना 6 था, 6 + 2 8, यहाँ पे 6 + 2 8। तो ऑक्सीजन क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का साथ शेयर करके फॉर्मेशन हो गया ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। ऐसा भी नाइट्रोजन का देखा जाए, नाइट्रोजन का 2,5 होता है, 7 एटॉमिक नंबर। इसका मतलब इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है। जब 5 इलेक्ट्रॉन होगा तो इसका मतलब 5 + 3 8, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने का होगा। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर लेते हैं और उसमें ऑक्टेव नेचर फॉर्मेशन हो जाता है। तो नाइट्रोजन देखो 3 इलेक्ट्रॉन की शेयर होके तो N2 फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जैसे CO2 का आपको स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोला है, तो आप ऐसा करोगे, ऑक्सीजन कार्बन, कार्बन और ऑक्सीजन 2 है, 2 ऑक्सीजन को इधर रखा। अब कार्बन को क्या 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर रखा, 2 इलेक्ट्रॉन इधर रखा। ऑक्सीजन की 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन की 8 इलेक्ट्रॉन को ऐसा अरेंज करा, ऐसे अरेंज करा। अब देखो इसका ऑक्सीजन को आपको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, अपना 6 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन का साथ शेयर कर लेगा, राइट। इस ऑक्सीजन को भी देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन का साथ शेयर कर ले गया, शेयर हो गया, तो दैट इज मीन ऑक्टेव नेचर हो गया। अब इस कार्बन को ऑक्टेव करने के लिए अपना 4 है, और ये नियर बाई ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन है उसमें से दोनों से 2 2 4 का शेयरिंग करके फॉर्मेशन हो गया, दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO2। ओके, तो इस तरह डिफरेंट आपको मतलब क्वेश्चन दिया जाते हैं, ये इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में कैसे आप फॉर्मेशन करोगे, तो ये इस तरफ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो और भी सब क्वेश्चन हम लाएंगे आगे। हम आगे बढ़ते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कार्बन का जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, तो ये कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड का रीजन में कार्बन और हाइड्रोजन को मिला के हाइड्रोकार्बन फॉर्मेशन होता है। हाइड्रोकार्बन, इस हाइड्रोकार्बन की ये सब क्या होता है ना, ये जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ कार्बन की, है ना, फॉर्मेशन होते हैं। इसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं। एक तो स्टेट स्ट्रक्चर होते हैं, ब्रांच होते हैं, और साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब रिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, रिंग स्ट्रक्चर। तो इसका मेन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन को कंबाइन में जो कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। तो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मीन्स अ कंपाउंड made up of hydrogen and carbon only is called hydrocarbon.
इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। तो इसमें हाइड्रोकार्बन में दो टाइप होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ओनली सिंगल बॉन्ड होते हैं, ये वन वन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होता है। और हाइड्रोकार्बन in which the carbon atoms are connected by only single bond is called a saturated hydrocarbon. Okay, only for सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होता है सैचुरेटेड। ये सब हमने बताएंगे। देखो इसमें जनरली क्या होता है ना, जो और एक अनसैचुरेटेड बताते हैं, फिर उसके बाद एक्सेलेंट कर देते हैं अनसैचुरेटेड। Hydrocarbon in which the two carbon atoms are connected by a double or a triple bond is called unsaturated हाइड्रोकार्बन। ओके, अब देखो हमने एक हाइड्रोकार्बन की नेम जो होते हैं उसकी अकॉर्डिंगली आपको मैंने कुछ वो सिखाएंगे, इसको नोट करो। जैसे आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ, मीथ, ईथ, ये एक्चुअली क्या होते हैं? ये आपको जनरली क्या होता है ना, ईथ, ये एक कार्बन अभी बताएंगे, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, सेप। ओके, और हेप भी बोलते हैं इसको, सेप बाय हेप। ओके, ऑफ, नॉन, डेक। अब क्या होता है, ये कार्बन एटम के होते हैं। जैसे वन कार्बन एटम को मीथ बोलोगे, दो कार्बन एटम को ईथ, तीन में फ्लॉप, चार में ब्यूट, पांच में पेन, सिक्स एंड सेप एंड हेप में सेवन, ऑफ, एट, नॉन हो गया नाइन, डेक हो गया 10। इस तरह कार्बन एटम का नेमिंग किया जाता है। जैसे हाइड्रोकार्बन हमने किया सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो उसमें क्या होते हैं ना, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर होते हैं एल्केन, ए के एन ई। एल्केन की जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। एन यहाँ पे हो गया नंबर ऑफ एटम, ठीक है, एन इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। यहाँ पे बोलो नंबर ऑफ एटम। अब एन की वैल्यू 1 पुट करोगे, देखो पुट
N is equal to 1 तो CH4। इसका नेम देखो मीथ, एक कार्बन को मीथ बोलते हैं और ए नहीं आएगा मीथेन। जैसे N इज इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो C2H6 होगा। दो कार्बन को मैंने बोलता ईथ एन, राइट। ऐसा ही सो ऑन N इज इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट करोगे तो C3 और H3 2 जा 6 8, तो इसको बोलते हैं प्रोपेन। ओके, इस तरह नेमिंग होते हैं सबकी। और जैसे N इज इक्वल टू 4 सब्स्टिट्यूट करोगे C4H10 दैट इज ब्यूटेन। ओके, ब्यूटेन। तो ये सब आपको डिफरेंट नेमिंग है ना। कार्बन एटम देखो यहाँ पे 4 है। जैसे N इज इक्वल टू 5 डालोगे तो C5H12 होगा, तो उसका नेम होगा पेंटेन। ये सब एल्केन ग्रुप के अंदर है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सब के अंदर सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं। कैसे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं जब हमने यहाँ पे आपको बताता हूँ। देखो जैसे हमने कार्बन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, CH4 का देखा, और यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन इसमें शेयरिंग कर लेगा। 2 हो गया ऑक्टेव। 2 ये भी ऑक्टेव नेचर होता है बिकॉज हीलियम को देखो एक ही सेल है जिसमें कंप्लीट इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होता है 2, वो फील है, इसलिए हीलियम इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑक्टेव नेचर बोलते हैं। इसीलिए हाइड्रोजन की एक इलेक्ट्रॉन है, एक शेयर कर लेगा तो 2 हो जाएगा, तो ऑक्टेव नेचर हो जाएगा। और कार्बन के पास 4 है और 4 इधर से चारों हाइड्रोजन से ये शेयर करके ये फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरह, ठीक है। और जैसे C2H6 का देखो, ये सब 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 6 3 4 5 6 कार्बन की 4 इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जैसे सिखाया था ऐसा देखो बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। हाइड्रोजन सिंगल में बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। और इस कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, देखो अपना 4 है, इस हाइड्रोजन से लेगा, इस हाइड्रोजन से लेगा और नियर बाई कार्बन से, और इस हाइड्रोजन से 4 हो गया। इस कार्बन को 4 करने के लिए देखो नियर बाई कार्बन की, और उसके बाद एडजेसेंट हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्टेव नेचर हो गया ना। तो इसको आपने डैश फॉर्मेशन में भी इस तरह दिखा सकते हैं। जब डॉट स्ट्रक्चर बोलेगा तो आपको डॉट स्ट्रक्चर में शो करना पड़ता है, ठीक है। ये हो गया। फिर आप तो देखो N इज इक्वल टू 4 का लिए हम करके देखते हैं। ये सब नोट कर लेना, बहुत इंटरेस्टिंग है। C4H10, तो इसमें देखो 4 कार्बन है, 4 2 3 4, और इसको यही ऐसा 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 हो गया 10। आप इनमें देखो डॉट बनाना चाहोगे, डॉट स्ट्रक्चर, और हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, उनको क्रॉस से डिवाइडिंग करते हैं। अब देखो इस हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। अब इजी होने लगा, देखो मैंने 3 तो करा दिए है, और देखो इजी हो जाएगा। ऐसे देखो सब हाइड्रोजन के साथ तो इजीली फॉर्म हो रहे हैं। और उसके बाद कार्बन को देखो अपना हाइड्रोजन का साथ 3 लेगा, ये 3 हाइड्रोजन का साथ लिया, और उसके बाद नियर बाई कार्बन के साथ लेगा, 8 हो गया। 4 लेना चाहिए, बस 4 करना है। तो 1, ये देखो 2 3 और इस कार्बन को देखो 1 2 3 और राइट। इस कार्बन को देखो
1 2 ये 3। इसका जो डैश स्ट्रक्चर में आपको इस तरह बना देंगे, सब एक एक करके देखो, सब एक एक करके इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रहे हैं, एक एक करके इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रहे हैं। वन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग 3 हो गया, वन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, ये देखो, ठीक है। इसको आपने इस तरफ आपको याद रखना है, CH3 CH2 CH2 CH3। अब इस तरफ आपको याद करना पड़ेगा ये इसकी स्ट्रक्चर। जैसे आपको एल्केन ग्रुप पता चलते हैं, एल्केन ग्रुप की गोल्डन रूल देखो, कार्बन एटम जो तो होता है उसको डबल करके 2 ऐड करना होता है। ये आपको इन फ्यूचर के लिए मेमोराइज में करना है, मेमोरी रखना है। ये कार्बन एटम जो भी होगा उसका डबल +2। जैसे देखो 4 का डबल 8, 8 + 2 10, एल्केन ग्रुप हो गया। तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। इसमें ध्यान रखना पड़ेगा जितना भी कार्बन एटम होगा फर्स्ट एंड लास्ट में CH3 आएगा, बाकी मिडिल में CH2 CH2 पुट करोगे। ये डायरेक्ट आपको जब आइसोमर कराएंगे तब उसमें आपको पता चल जाएगा, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होता है। जैसे आपको बोला है पेंटेन, ये एल्केन ग्रुप हमने C5 कर दिया, इसका डबल कर दिया +2 कर दिया। हमने मानो जनरल फॉर्मूला भूल गया, लेकिन इस रूल को याद रखो, कार्बन एटम को डबल +2 कर देंगे, दैट इज होगा एल्केन ग्रुप। तो पेंटेन हो गया। जैसे आपको बोला हेक्सेन बनाओ, तो आपने C6 करा, इसका डबल 12, 6 का डबल 12 +2 14, तो हाइड्रोजन 14 एटम हो जाएगा। तो ये जनरल फॉर्मूला हमने भी इसीलिए दिखाया था, CnH2n+2, ठीक है ना। ये जनरल फॉर्मूला आपने याद नहीं रहा है तो गोल्डन रूल आपको याद रखना पड़ेगा। अब आपको देखो इसमें पूछा जाता है फाइंड द नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड ऑफ C4H10। तो आपने ये बनाया स्ट्रक्चर, आप बॉन्ड काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, फिर से काउंट करो, देखो यहाँ 4 है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड 13। ऐसा ही सबका पूछा जाए तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर बना कि ये डैश वाले स्ट्रक्चर सब इजी होते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड कितना होगा, ठीक है। अब देखो हमने आपको ये स्ट्रक्चर जो है इजी बताया, जैसे आपको बोले हैं वो बना पेंटेन का, तो हमने आपको गोल्डन टू सिखाया C5, इसका डबल 10 10+2। अब इसका आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तो आपने जैसे सिखाया ऐसा बना लो, लेकिन आइसोमर करना होता है, आगे में आइसोमर समझाएंगे। तो उसकी आपको जनरल स्ट्रक्चर कैसे लिखोगे, मैंने आपको सिखाया था। ये यहाँ पे CH3, लास्ट में CH3 आएगा, तो 2 कार्बन के साथ H3 हो गया, बाकी जो कितना कार्बन रहेगा 3, तीनों का साथ CH2 डालो, CH2 CH2 और लास्ट बस। इसका देखो, तो इसमें भी कोवैलेंट बॉन्ड पूछा जाए तो आपने कैसे करोगे, तो उसमें आप इसकी स्ट्रक्चर बनाया, ये देखो इसमें इजी होता है ना। अब काउंट करो, देखो ये 4 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड 16। इस तरफ आपको कोवैलेंट बॉन्ड को काउंट करते हैं। ये सब एल्केन ग्रुप हो गया। अब एल्किन ग्रुप में चलते हैं। अच्छा हम इसको उससे पहले, अच्छा पहले हम इसको क्लियर करते हैं, उसके बाद हम चलेंगे। आप एल्किन ग्रुप जो है जनरल फॉर्मूला होता है एल्किन की CNE, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। मतलब कार्बन एटम डबल कर दो बस, कार्बन एटम जितना होगा डबल करेंगे हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम।
तो जैसे यहाँ पे कार्बन एटम 2 से शुरू होते हैं, 3 से नहीं होते, 2 से। जैसे आपने 2 डालोगे, C2H4, 3 पुट करो, C3H6, 4 पुट करो, 4 का डबल 8, ये भी गोल्डन रूल हो गया, कार्बन एटम डबल। फिर 5 पुट करो, 10। अब इनकी जो नेम होगा, मैंने आपको सिखाया था, 2 कार्बन को ईथ बोलते हैं, ईथ। और जब ये एल्कीन ग्रुप है तो यहाँ पे ENE आ जाएगा, नेमिंग वही रहेगा कार्बन एटम में, सिर्फ वो चेंज हो रहा है। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप। और ये ENE ग्रुप है प्रोपीन, ये ब्यूट, ब्यूटीन और पेंटीन, इस तरह नेमिंग होता है। तो मतलब 2 कार्बन को इथेन, ये देखो इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन और पेंटीन, ये जो स्ट्रक्चर होते हैं ये सब एल्किन ग्रुप की है। और इसकी हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे, जैसे C2H4 का 2 कार्बन डाला और 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 डाला, यहाँ पे 2, यहाँ पे। अब आपको देखना है कैसे होगा, ठीक है? रुको, देखो ये तो हो गया ऑक्टेव। लेकिन इस कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन इन दोनों का साथ शेयरिंग हो गया, बाकी जो दोनों इलेक्ट्रॉन है इसको इधर डाल। तो आप इस कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन कैसे मिलेगा? तो हाइड्रोजन थे, हाइड्रोजन से आ रहे नियर बाई एडजेसेंट कार्बन दोनों से लेगा, तो 4 हो गया। उसको 4 जनरली चाहिए, देखो 1 2 3 4, इस कार्बन को 4 है अपना, देखो ये 2 और ये 3 हो गया ऑक्टेव नेचर। तो आप देखो डबल डबल बॉन्ड के साथ हो रहे हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो मतलब ऐसा आपने डैश फॉर्मेशन में ऐसा लिखोगे, 2 बॉन्ड हो रहा है। और इसमें नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड हो गया 6। अब जैसे आपको बोला जाए C3H6 का करो, प्रोपीन का, देखो कार्बन डाला, इसमें टेक्निक सिखाता हूँ। देखो आपने हाइड्रोजन इधर में डालो, 3 हो गया ना, और 3 हाइड्रोजन होते हैं, ऐसा करो, एक में H और लास्ट में 2 डालो, ये स्ट्रक्चर याद रखो। यहाँ पे क्या होगा, 3 डाला और बाकी 3 रहेगा, तो सेकेंड दोनों रहते हैं ना, लास्ट 2 रहते हैं, लास्ट सेकेंड लास्ट में H और लास्ट में 2 हाइड्रोजन। ये स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर याद रखो, जैसे C4H8 देगा, तो लास्ट स्ट्रक्चर सब में यही रखो, इससे आपको फटाफट सॉल्व होगा। कहीं जगह रख सकते हैं, लेकिन आपको ये वाले याद आओगे मेथड, तो आपको स्ट्रक्चर बनाने में बहुत आसान होगा, ठीक है? अब देखो इसकी हमने वो बनाते हैं, देखो इस कार्बन को 1 2 3 मिल गया, तो एक इलेक्ट्रॉन का साथ ही शेयर कर लेगा। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए। इस कार्बन को देखो 1 2, लेकिन और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिलेगा, क्योंकि कार्बन की 4 इलेक्ट्रॉन है ना, 1 2 3 4 इधर हो गया, यहाँ पे 2 है, इधर 2 है, 4। तो अपना फिर क्या होगा, इसके साथ शेयर करेगा। इस कार्बन में देखो 2 3 4, तो ओनली पर एक ही जगह डबल बॉन्ड होता है, तो इसकी जो फॉर्मेशन करोगे ऐसा, डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH। अब इसमें कोवैलेंट बॉन्ड कितना देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नंबर ऑफ
कोवैलेंट बॉन्ड 9, तो 4 5 6 7 8 9, तो नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इज 9। समझ आ रहे हैं? अब देखो इसमें हम इसका ब्यूटेन का बनाता हूं अभी, C4H8। मैंने आपको बोला है जो कार्बन डैश वाला बना देता हूँ। मैंने बोला था यहाँ पे हाइड्रोजन 3 डालोगे, यहाँ पे 2 है, बाकी सेकेंड लास्ट में H या लास्ट में 2। अब काउंट करके देखो, 3 4 5 6 7 8 आ गया। अब इनमें मैंने बोला था यहाँ पे सब एक एक करके बॉन्ड होते हैं, और एक एक करके यहाँ पे लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग डबल हो जाता है। तभी शेयरिंग होगा, देखो 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3। ठीक है, ये फॉर्मेशन आ गया। तो आप इसमें नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, देखो 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गया एल्केन ग्रुप। अब देखो एक ध्यान रखना, ये स्ट्रक्चर आपको देखो, इसको हमने ऐसा लिख सकते हैं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। जब आइसोमर कराएंगे तब आपको ये स्ट्रक्चर की डायरेक्ट आप पढ़ोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे आपको बोला C5H10 का करो, पेंटेन 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 का, तो आपने, मैं आपको टेक्निक सिखाया था ना, CH3 रखो, कार्बन को काउंट करते जाओ, एक कार्बन हुआ, 2 कार्बन हुआ CH2, तीसरा कार्बन हुआ CH2, और ये CH2 आएगा बीच में, तो अभी स्ट्रक्चर हमने देखा है ना, फॉर्मेशन होगा। और फोर्थ और ठीक रहते थे, फोर्थ वाले में CH, और मैंने बोला था डबल वन डाल के CH2, ये होगा CH3 CH2 CH2 CH डबल वन CH2। इस तरफ करो, याद रखो। ठीक है, ये लास्ट का स्ट्रक्चर को ध्यान से रखो। ये डबल वन इधर भी हो सकता है, मिडिल में भी हो सकता है, लेकिन आपका लिए डिफिकल्टीज होगा, तो आप इतना याद रखो स्ट्रक्चर, जिससे आपको नेमिंग कर सकते हैं। नेमिंग तो आपका नहीं है, आईयूपैक नेम वो आपको डिलीट हो गया। ये हो गया इसकी, तो ब्यूटेन पेंटेन का। अब हम चलते हैं एल्काइन ग्रुप, YNE। इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n-2, मतलब कार्बन एटम डबल करके 2 से माइनस, कार्बन एटम जितना होगा डबल 2 माइनस। जैसे यहाँ पे भी कार्बन एटम 2 से शुरू होता है, देखो C2H2 C3H4 C4H6 C5H8, नो 8। अब इसमें नेमिंग क्या होगा, 2 कार्बन को बोलते हैं ईथ, ये होगा आइन इथाइन। ये 3 कार्बन को प्रोप आइन, 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट आइन, ये पेंट आइन, ऐसा नेम होते हैं। तो मतलब इथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन पेंटाइन। देखो कार्बन एटम को आपने याद है कि वो सीरियल मीथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्सेप ऑफ नॉन डेक, ये याद रखोगे तो उसके हिसाब से आपने मीट ये सब आएगा कार्बन एटम से, बात कौन से ग्रुप में है उसके हिसाब से नेमिंग कर देंगे, है ना। तो आप इनमें जैसे इनकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पाना है, C2H2 का 2 कार्बन है, दोनों कार्बन के इधर एक एक डाल दिया, एक और एक, और 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेगा, तो इस कार्बन का एक एक हो गया। और ये कार्बन देखो 1 हाइड्रोजन से लेगा, नियर बाई 3 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन, फिर यहाँ पे 3, ये स्ट्रक्चर। जैसे आपको इसमें नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड पूछा जाए, देखो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, अब काउंट करो, है ना, कैसे होगा 1, ये हो गया 3 4 5, तो नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड 5 हो गया।
ठीक है, अब C3H4 का करें। मेरे ख्याल से आपको समझ आ रहा है, लेकिन इसको ध्यान से देखिए। देखो, तीन पहले इसमें तीन फिल कर दिया, बाकी और एक रहते हैं लास्ट में। इसका स्ट्रक्चर इस तरफ याद रखो, पहले में CH3 फिल होगा, बीच में जो भी होगा उसको फिल करते जाओ, लेकिन सबसे लास्ट में ध्यान रखो, सेकेंड लास्ट में C रहेगा और लास्ट में H रहेगा, CH। ये स्ट्रक्चर आप याद रखो। देखो आपको फटाफट स्ट्रक्चर बॉन्ड होगा। देखो यहाँ पे आपको तीन तीन का शेयरिंग होगा, ठीक है। मैं कार्बन का कर रहा हूँ। कार्बन देखो इजीली यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया। इस कार्बन का 1 और यहाँ पे 3 है, 3 + 1 4 हो गया, ठीक है। इस कार्बन को देखो, ये 3 है और ये 3 + 1, ओके। अंडरस्टैंड। चलो अब आगे हम चलते हैं C4। अब ये स्ट्रक्चर आपको देखो याद है, कोई यहाँ पे नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड बोलेगा, देखो 1 2 3 4, यहाँ पे 3 है, 5 6 7 8, 8 हो गया नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। अब हम चलते हैं C4, 6 जो हमने स्ट्रक्चर बताया, C C C, यहाँ पे 3 कर दो, यहाँ पे 2 कर दिया, 5 हो गया। और एक रहते हैं लास्ट में, कुछ नहीं है, लास्ट में H रहेगा, बाकी इसमें C रहेगा। अब स्ट्रक्चर देखो, ऐसा ऐसा बना सकते हैं, और यहाँ पे 3 3 का आएगा बस। ये हो गया 4 5 6 7, देखो 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10 11, वैलेंट बॉन्ड 11, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड कितना हो गया, 11। आया समझ में। जैसे आपको बोला है C5H8 का बनाओ, तो आपने देखो ध्यान रखो, CH3 CH, 2 हो गया, तीसरा हो गया, और 2 रहते हैं यहाँ पे C1 CH। ये देखो, ये फॉर्मेट बनाना सीखो। इसको सीख जाओगे तो आपको आइसोमर फॉर्म करने में बहुत ही आसान होगा, ठीक है। ये सब 3 टाइप्स में हमने वो बता दिया। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, एल्काइल ग्रुप। Alkyl group, the group formed by the removal of one hydrogen atom form an alkane molecules is called alkyl group. Alkyl group मतलब group formed by the removal of one hydrogen atom form an alkane molecules is called alkyl. Alkane molecule से जैसे कि मीथेन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो क्या होगा, CH3 हो गया, इसका बोलते हैं मिथाइल एल्काइल। जैसे C2H6, रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन, तो C2H5 हो गया, इसको इथाइल एल्काइल, ओके। इस तरह होते हैं। लेकिन आइसोमर के लिए हमें जनरली अभी आपको लेवल में CH3 चाहिए, मीथेन से CH3
मॉलिक्यूल्स को आपको रिमूव करना होता है। वही हम आपको कराएंगे आइसोमर के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस टर्म के लिए आप लोगों के लिए। आइसोमर सेम केमिकल फॉर्मूला and different structure is called isomer. Same chemical formula and different structure is called isomer. देखो आइसोमर जो आपको शुरू होते हैं, कार्बन जो होते हैं, कार्बन एटम 4 और मोर देन 4 एटम से शुरू होते हैं। 4 एटम बा मोर देन 4 कार्बन एटम 4। आइसोमर का जो डेफिनेशन है, डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म तभी होगा कार्बन एटम, ये आपने नोट में डाल दो, कार्बन एटम रिक्वायर 4 और मोर देन 4, तभी ये स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है। बट एल्काइल ग्रुप में कार्बन एटम 5 से शुरू होते हैं। अभी आपको जब आएगा बताएंगे। अभी हम क्या करेंगे, इसकी आइसोमर फॉर्मेशन करेंगे। जैसे ब्यूटेन की कार्बन एटम 4 से शुरू होते हैं, एल्केन ग्रुप का पहले कर रहे हैं। ब्यूटेन फॉर्मूला आपको पता है, कार्बन एटम डबल करके ऐड करना है ना 10। और जैसे ब्यूटीन बोलते हैं, कार्बन एटम को डबल कर देते हैं C4H8। ब्यूटाइन बोलते हैं, कार्बन एटम को डबल करके 2 माइनस करना है। 4 2 8, 8 से 2 माइनस कर दोगे तो दैट इज मीन 6, C4H6 हो जाएगा। ठीक है। अब ब्यूटेन आपको मैंने सिखाया था, जो एल्केन ग्रुप की स्ट्रक्चर डैश में CH3 CH2 CH2 3 हो गया, लास्ट में CH3। ओके, लास्ट में CH3 CH3 CH2 CH2 CH3। अब आपको टारगेट, ये नॉर्मल ब्यूटेन बोलते हैं इसको, पर नेमिंग की जरूरत नहीं है, आईपैक नेम तो आपका नहीं है। तो ये जो है इन दोनों को कंबाइन करके फॉर्मेशन हो रहा है C2H4 C2H4। तो आपने क्या करोगे, ब्रांच बनाओगे, यहाँ पे एक C, यहाँ पे एक C, 2 कार्बन थे, दोनों कार्बन का एक ब्रांच बना दिया, बाकी यहाँ पे CH3 को हमने डाल दिया। अब देखो इस ब्रांच में हाइड्रोजन एटम कितना थे, हाइड्रोजन एटम थे 4। तो 4 में से यहाँ पे एक आपको टारगेट रखना है अल्काइल ग्रुप, दैट इज मिथाइल अल्काइल को निकालना है, CH3 को निकालना है। तो 3 हाइड्रोजन इसके साथ डाल दिया और एक हाइड्रोजन रहते हैं वो इसके साथ आएगा। तो इसकी स्ट्रक्चर आप बोलोगे सर स्ट्रक्चर कैसे फॉर्मेशन है, और देखो ये देखो, आप इसको स्ट्रक्चर दिखाना चाहोगे, ये देखो फॉर्मेशन होगा इस कार्बन की ऐसा स्ट्रक्चर हो गया। देखो इस कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, देखो ये देखो 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये देखो 1 2 3 4, इस कार्बन को देखो 1 2 3 4, इस कार्बन सब इलेक्ट्रॉन। तो देखो केमिकल फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंस है, आइसोमर। तो ब्यूटेन के यही फॉर्मेशन हो सकते हैं। और हमने आगे बताएंगे पेंटेन का, पॉज करके कर लेना। C5H12 आपको जो सिखाया था, देखो CH3 CH2 CH2 4 हो गया ना, लास्ट में CH। अब इनको दोनों को, इन दोनों को मिला के फास्ट 2 को मैंने सिखाया, दो कार्बन, तो C2H4 हो गया। तो यहाँ पे H3 लेना है और एक ही रहेगा इसमें डाल, बाकी जो है इसके नेमिंग कर देंगे। एक्चुअली इसका नेमिंग नहीं है, नंबर जैसे नेमिंग होता है तो ब्रांच जिधर से पास होता है उधर से नेमिंग करते हैं 1 2 3 4। तो 2 पोजीशन में मिथाइल होता है तो इसका नेम होता है 2 मिथाइल ब्यूटेन। 4 है, 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं, ब्यूटेन 2 मिथाइल ब्यूटेन। जो भी है इसके लिए हमने टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अभी पेपर का टाइमिंग है, नेमिंग जरूरत नहीं है, अभी नेमिंग नहीं आ रहा है। अब इन दोनों को लेके भी करोगे नेमिंग वही आएगा
है ना। अब इन तीनों को लेके आपका हिसाब से फिर स्ट्रक्चर बना ही देना। ये दोनों को मिला के देखो सी, और यहाँ पे सी H3 ले लेते हैं, एक इंच यहाँ रख दिया 20। एक्चुअली ये दोनों सेम नेमिंग होते हैं आईपैक नेम में, नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे तभी वही आएगा 2 पॉइजन मिथाइल 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है। अब इन दोनों सेम स्ट्रक्चर हो गया, आप तीनों को मिला के भी कर सकते हैं, तीनों को मिला के भी कर सकते हैं। तो ये तीनों को जो मिला के हम करेंगे तो इसमें देखो आप खुद देखा करो C3H6 बन रहा है। ठीक है, C3H6। अब देखो इसमें CH3 रखा, C, यहाँ पे C, यहाँ पे C, और बाकी CH, यहाँ पे देखो CH3 डाल दिया, CH3 डाल दिया। 6 कार्बन थे तो 6 कार्बन इधर आ गया, है ना, 6 कार्बन इसका आ गया। तो इस तरफ आपको देखो एक ही केमिकल फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर, इसलिए इसको आइसोमर बोला जाते हैं, इसलिए इसको आइसोमर बोला जाता है। तो आईयूपैक नेम जो आपको नहीं है, लेकिन जनरली आपको ध्यान रखना पड़ेगा जे आप इस तरह वे में आप उसको करोगे। बट आपको और कुछ देखो ये जो आपने स्ट्रक्चर बनाया है, इस स्ट्रक्चर का जैसे ये नियोपेंटेन भी बोलते हैं, नियोपेंटेन। ठीक है, इसका और एक नेम भी लिख के रखो, ऐसा नेमिंग तो नहीं आ रहे हैं, नियोपेंटेन, नियोपेंटेन, है ना। और इसको बोलते हैं आइसोपेंटेन, ये वाला आइसोपेंटेन बोलते हैं, आइसोपेंटेन। ऐसे ब्यूटेन का भी देना, आइसोब्यूटेन बोलेंगे, एक स्टार 5 थे आइसोब्यूटेन। ठीक है, अब हम चलते, देखो आपको देखो इजी वे में C6H14 का बनाना है, तो एल्केन ग्रुप है, तो आपने ऐसे ही करोगे CH3 CH2 CH2 CH2, कितना हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और CH3, राइट। अब इन दोनों को मिला के देखो एक स्ट्रक्चर बनेगा। आप लोगों को अभी समझ आ गया होगा, तो मैं थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ, और बाकी देखो CH2 CH2 CH3। आप इन दोनों को फिर मिलाओ, तो ये CH3 CH2, इन दोनों को मिला के C2H4 होगा, यहाँ पे CH CH3 CH2 CH3। आप ये दो करके करो, इन दोनों को अलग अलग लेते हैं, CH CH3 CH CH3, और ये हो गया CH3, एक हो गया स्ट्रक्चर। और ये तीनों को लेके भी कर सकते हैं, तो आइसोमर जो है आएगा ही आएगा 100%, ध्यान रखना, कोई भी स्ट्रक्चर। ठीक है, तीनों को ले लिया, CH2 CH3, ये सब देखो अलग अलग हो गया, नेमिंग की जरूरत नहीं है, आप लोग नेमिंग ऑटोमेटिकली, हमने आपको बताया आउट ऑफ सिलेबस हो गया। अब ये सब एल्केन ग्रुप की हो गया, अब एल्किन ग्रुप में चलता हूँ, तो कार्बन एटॉम 4 से शुरू होते हैं, ब्यूटीन C4H8, मैंने आपको स्ट्रक्चर सिखाया था, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये लास्ट स्ट्रक्चर याद रखो, शुरू में CH3C होता है। अब इन दोनों को मिला के करोगे, देखो 2 कार्बन है, हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है, तो यहाँ भी आएगा, बाकी इधर आएगा ही नहीं है, और इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगा, इसका स्ट्रक्चर में आप देखोगे ऐसा होता है ना। ये देखो, इस तरफ स्ट्रक्चर देखो, सबके साथ ही फॉर्मेशन, इसके एक ही होते हैं ब्यूटेन का। अब उसके बाद हमने पेंटीन का चलते हैं, पेंटीन C5H10, तो देखो 5 कार्बन 2 3 4 5,
और एक मिनट जो आपको सिखाया था CH3 CH2 CH2 3 हो गया, 4 हो गया। देखो 1 2 3 नो 4 नहीं होना चाहिए, 3 तक करो। उसके बाद लास्ट जो है इसमें CH डबल 1 CH। अब ये दोनों को मिला के कर सकते हैं, ब्रांच बना सकते हैं। C2H6 3 हो गया और एक H रहते यहाँ डाल दिया, बाकी CH डबल 1 CH। अब इन दोनों को लेके करोगे CH3 CH2, यहाँ पे देखो C2H3 तो 2 C है और एक लास्ट ये वाले में CH3 लाना है, यहाँ पे H नहीं रह रहा है और H नहीं लिखोगे बिकॉज CH। ठीक है, ये पेंटेन का हो गया, पेंटिन नॉट पेंटेन, पेंटिन। ठीक है, अब हमने चलते हैं एल्काइन ग्रुप में। एल्काइन ये हेक्साइन ये ट्रिपल बॉन्ड के अंदर जो होते हैं उसमें सिर्फ कार्बन एटम 5 से शुरू होते हैं, C5H H8। ये होता है एल्काइन, ये होगा पेंटाइन, पेंटाइन राइट, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इसका मतलब यहाँ पे मैंने सिखाया था CH3 CH2 CH3 हो गया, सिंगल 1 C ट्रिपल 1 CH। ये देखो 3 + 2 5 6 7 8 आ गया ना स्ट्रक्चर। तो आप इसको बनाओगे, देखो इन दोनों को मिला के बनाओगे, CH3 कर दिया और एक H इधर आकर ट्रिपल 1 CH हो गया। तो इसका नेमिंग जो है यहाँ से होता है, बट ये नेमिंग की जरूरत नहीं है, एक स्ट्रक्चर बनेगा। ये देखो ये बन गया इसका, और इसमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी आपको शो करना है, तो आप ऐसा शो करोगे। इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, ऐसे ही डैश में बना। सब में देखो फॉर्मेशन हो गया, ये हो गया C5H8। उसके बाद हम चलते हैं C6H10, है ना, ये हो गया हेक्साइन। तो C6 का देखो CH3 CH2 CH2 3 हो गया, 4 हो गया, 5 ट्रिपल 1 CH6, ये होता है। अब ये दोनों को मिला के बना सकते हैं, देखो आपको काफी समझ आ गया होगा, है ना। देखो C ट्रिपल 1 CH। अब इन दोनों को लेके भी बना सकते हैं, CH3 CH2 इन दोनों को लेके CH CH3 सिंगल 1 ट्रिपल 1 CH, राइट। अब इन तीनों को लेके बना सकते हैं CH3 CH3 सिंगल 1 C ट्रिपल 1 C। देखो स्ट्रक्चर हो गया आइसोमर। ये सब डिफरेंट स्ट्रक्चर हमने एल्कोन एल्कीन एल्काइन ये सब के अंदर बताया। नेक्स्ट क्लास में हम आपको होमोलोगस सीरीज पढ़ाएंगे, उसके साथ में फंक्शनल ग्रुप की बताएंगे। फंक्शनल ग्रुप के केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं आ रहे हैं, सिर्फ उसकी स्ट्रक्चर बताएंगे, उसका नेमिंग सिखाएंगे कैसे कैसे नेम करते हैं, और नेक्स्ट उसकी आइसोमर भी फॉर्मेशन सिखाएंगे। उसमें सिर्फ जनरली एल्डिहाइड और कीटोन की अंदर ही आइसोमर फॉर्मेशन दिखाते हैं, वो भी हम पढ़ाएंगे। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, है ना, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। प्रैक्टिस करोगे तभी जाके आप सीखोगे, और उसके साथ में नोट्स करते जाओ, है ना। ओके, अब उसके बाद लास्ट में हमने टेक्स्ट बुक का भी तुम लोगों का एनसीईआरटी का एक्सप्लेन करेंगे, कैसे कैसे एक्सप्लेनेशन है वो बताएंगे। ओके एवरीवन, बाय, टेक केयर।